हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो देश है वह आजाद है या नहीं। I am talking about India. Did our India got the freedom? हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो भारत है वह आजाद है। Okay. So our India got freedom. तो जो हमारा भारत है वह आजादी पाए हैं। We have a constitution also. हमारे संविधान भी है। In our constitution, it is clearly written that men and women both are equal. जो हमारा संविधान है उसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है कि जो औरत और मर्द है दोनों समान है। I am repeating again. Men and women both are equal. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो औरत और जो मर्द है दोनों एक समान है। But even now in our country, there are many places where women are treated badly. और अभी भी जो हमारा देश है उसमें ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो औरतें हैं बहुत गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। So I just want to ask a simple question. Did you see more men going out for job or more women going out for तो job? मैं आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो मर्द लोग ज़्यादा कार्य करने बाहर जा रहे हैं या फिर औरत। What you have seen? आपने क्या देखा? हाँ? जेंट्स ही ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि लेडीज को तो पहले ही हाउस वाइफ बना देते हैं। Yes, ma'am. Absolutely right. आपका उत्तर सही है मैम। In a country where we got freedom, but only men got the freedom in actual life. Only he is going outside. जो हमारा देश है उसमें जो हमारी आज़ादी प्राप्त कर लिया, पर जो देश के अंदर जो लोग रहते हैं तो उसमें सामान्य रूप से जो मर्द है उन्हें ही यह अधिकार मिला है। Why not women are also going like men outside? क्यों नहीं ये औरतें वो क्यों नहीं बाहर जाके कार्य करने उससे मर्द जाते हैं? Because they are forced by their parents, their husband and their family. तो क्योंकि जो औरतें हैं वह अपने परिवार के द्वारा दबाव डाला जाता है, अपने पति के द्वारा दबाव डाला जाता है ताकि वे घर में रहे। They also want to do the job. They also want to be self-dependent. उन्हें भी अपने जो मतलब कि जो कार्य करने बाहर जाना है और खुद पे आत्मनिर्भर रहना है। So this is the sign of a free country. यह एक चिन्ह है आज़ादी का देश का। In a country where only men are going outside for the job and women are not going outside for the job. They are doing their work at house. जहाँ ऐसा हो रहा है कि जो औरतें हैं वह बाहर कार्य करने नहीं जा रही और जो मर्द है वही बाहर कार्य करने जा रहे हैं। Is it a sign of free country? क्या ये एक आजाद देश का चिन्ह है? Sir, you tell me the answer, please. But it depends upon the situation. There are lot of different situations, but you cannot define them. See, I know in our country is a free country. In our constitution, it is written that men and women are equal. But I am not telling that all India, the whole parts of India are where the women are treated badly. But I am telling in most of the parts of India, women are treated badly. I am not telling that the whole India is treating women badly. मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरा भारत है वह औरतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। But most of the parts of India पर जो भारत के जो ज़्यादातर जो भाग है are treating women badly. जो औरतों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। In villages nowadays, now also, parda prathas are going on. गाँव में अभी भी जो गाँव में जो औरतें हैं उनके साथ प्रथा कहीं चल रही है। Do you know what is the meaning of parda pratha? क्या आपको पता है प्रथा का अर्थ क्या है? Yes, ma'am. So, can you answer me why women keep these pardas? तो आप उत्तर दे सकते हो कि ये प्रथा औरतें क्यों रखती है? In our Hindu religion, it is said to express the respect. बोला तो ऐसे जाता है कोई बड़ों का आदर होता है। Yes, ma'am. You are absolutely right. आपका उत्तर सही है। बाकी आदर ऐसे नहीं होता, आदर मन से होता है। Yes, ma'am. Not every woman is giving the respect to other person, but still she is wearing a parda. हर औरत ऐसे आदर नहीं देती पर हर औरत जो है अपना पर्दा डाल के रखती है। For example, if you are putting your like parda or cover in front of your mother-in-law, to whom you fight all the day, that doesn't mean that you are respecting her too much. आप इमेजिन करो कि जो आप है वो अपना ऊपर पर्दा डालते हो जिससे आप जबकि आप उनसे बहुत
अब आप अपनी सास से बहुत लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो। Just for example, सिर्फ एक उदाहरण दूंगी। so that doesn't mean that you are paying respect to her. यह बहुत दिखाता है कि आप उनके आदर कर रहे हो। This doesn't show that. यह वह नहीं दिखाता। So, for example, if do you wear the cover in front of your husbands? क्या आप अपने जो पति हो उनके सामने आप पर्दा पहन के रखते हो? इसके सामने जैसे घर में और कोई ऐसा होता है your husband. Just so that means you are not paying respect to them. इसका अर्थ यह होता है कि आप उनको आदर नहीं दे रहे। मतलब मैं समझी नहीं, आप जैसे पर्दे के बारे में पूछे ना, तो मैं एक बार आपने एक्सप्लेन करो। So I want to explain again, right? So I am telling that you wear cover to show the respect, and you are not in Hindi में, English में हिंदी में बता दो। me. हाँ। तो आप पर्दा रखते हैं क्योंकि ये इज्जत को दिखाता है, रिलीजियस इज्जत। तो जैसे कि अगर आप अपने सास से पूरा दिन झगड़ा करके अगर उनके सामने पर्दा रखिए, तो क्या इसका मतलब होता है कि आप सच में उनकी आदर करेंगे? और क्या आप अपने पति को आदर करती हैं? फिर भी उनके सामने आप पर्दा नहीं रखते। तो बात तो सही है ना कि हर औरत ऐसी नहीं होती जो पर्दा रखे लेकिन रेस्पेक्ट करे। तो ये था मेरा बताने का पॉइंट। सो क्या मैं अब इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकती हूँ? Okay. मैम का एक सवाल है मेरे पास। I will give you answer. सवाल नहीं है बेटा, जो आप कहना चाह रही हो, मैं एक बात बता दूँगी, ये तो अपना इंडिया का कल्चर नहीं है पर्दा करना। ये एक्चुअली जो मुस्लिम वगैरह आए थे यहाँ पे आक्रमणकारी, उनसे अपने यहाँ की लेडीज़ को बचाने के लिए ये उनमें थोपा गया था, उसमें बचाने का एक रास्ता था। और अब ये कुरीति के रूप में आ रहा है और अब तक तो चला आ रहा है, स्पेशली विलेजेस में, गाँवों में जो है अभी भी उसको इज्जत का प्रतीक मानते हैं कि ठीक है पर्दा पड़ गया तो बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। Yes, ma'am. So, from ancient times, many practices were going on, many evil practices were going on, like sati pratha, child marriage, etc. तो जो पुरानी काल से समय से लेकर अभी तक बहुत प्रथाएं हो रही है, जैसे कि वो पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह आदि। And in sati pratha, if a woman lost her husband, ये जो सती प्रथा है उसके अंदर अगर एक औरत अपने पति को खो देती है, that means if her husband is died, इसका अर्थ यह होता है कि जो उनका जो पति होता है वह मर जाते हैं, then she is forced to die on that same fire. वो भी उनके ऊपर भी यह दबाव डाला जाता है कि जो जिस आग में उनका पति जलाई जाएगी उसी आग में उन्हें भी डाला जाता है। Okay, I agree. If her husband is died, she will be upset, obviously. इससे मैं सहमत हूँ कि अगर उनके पति मर गया तो वो भी उदास होंगी, She will be so broken. वह बहुत टूटी हुई होगी। But this doesn't mean that she will die. और यह नहीं दर्शाता कि वो भी उनके साथ मरे। Even she is not willing to die, she want to live her life, but still due to these practices, she have to sacrifice her life. वह आशा मरने की आशा नहीं रहती, पर उनके ऊपर दबाव डाला जाता है मरने के लिए। And in our constitution, it is clearly written that killing someone is a criminal offense. अगर हमारे संविधान में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी को मारते हैं तो वह एक जुर्म होता है। So sati pratha is also a criminal offense in my side. तो सती प्रथा है वह मेरे राय के अनुसार वह भी एक जुर्म है। And if we are talking about child marriage, अगर आप बाल विवाह के बारे में बात करते हो, the women who want to get more education, the women who want to fulfill their parents' dreams, they can't do that. Why? जो औरतें होती है वह अपने शिक्षा प्राप्त करती है और जो अपने माता पिता के जो सपने होते हैं उसे पूरे करना चाहती है, But they can't do that. पर वो यह नहीं कर पाती। Why? क्यों? Because of they are married in a small age. क्योंकि वह एक छोटी बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। Even they don't understand the correct meaning of marriage in that age. वह उस उम्र में वह जो विवाह है उसका असली अर्थ या फिर उसका असली मीनिंग समझ नहीं पाती। At that age, they are forced to do the marriage, and then
to whole life they are doing the household activities. वह उस समय उनके ऊपर दबाव डाला जाता है विवाह करने के लिए और वह उसी समय से वह अपने घर में घर के कार्य करती है। Then everyone she cares from that age, from that small age, she have to take care of her husband, his family, the children and everyone. उसी उम्र में उसे अपने परिवार के, अपने बच्चे की, उससे अपने पति की और घर के बाकी अदर की उनके कार्य करना पड़ता है। Not for that just small child, even to their whole life they are just giving their whole life for the caring of her family. सिर्फ उसी उम्र में नहीं, उसे पूरी जिंदगी में उन्हीं की सुरक्षा के लिए अपना पूरी लाइफ यानी पूरी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। I know, I understand that there are many families in our India who are educating their women even after marriages. मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारे देश है भारत में, इसमें बहुत औरतें शिक्षित हो रही है और वो शादी के यानी विवाह के बाद भी वह शिक्षा प्राप्त कर रही है Due to the free ideology of persons. वो सिर्फ इसलिए आज़ादी की सोच के कारण। But mostly women are not educated after marriages. पर ज़्यादातर जो औरतें होती हैं वह विवाह के बाद शिक्षा प्राप्त नहीं करती। They have to sacrifice their dreams, their parents for their other family. जो उनके जो सपने होते हैं अपने माता पिता की, उससे त्यागना पड़ता है किसके लिए? उनकी अपनी परिवार के लिए। See, it is right. I agree that women can take care of men and their family. इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो औरत होती है उसे अपने परिवार की सुरक्षा या फिर उसकी केयर के लिए उसे केयर के लिए अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना पड़ता है। But this doesn't mean that women can't do outside jobs. This doesn't mean that women can't join the politics. और यह नहीं दर्शाता कि जो औरत होती है वह बाहर कार्य नहीं कर सकती और जो राजनीतिक कार्य होते हैं उसमें कार्य नहीं कर सकती। It is said that women are more multitasking than men. यहाँ पर यह कहा गया है कि जो औरतें होती है जो मर्दों से ज़्यादा कार्य कर सकती है। So, for example, even if you check about the income is also reduced for women than men. अगर उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो औरतों की जो आय होती है वह मर्दों की आय से बहुत कम है। For example, if a man and women both are working as a labourer in construction site, अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मर्द और औरत दोनों कार्य कर रही है, the men will get 750 rupees per day. जो मर्द है प्रतिदिन के 750 रुपये उन्हें प्राप्त होंगे। But the women who is doing the same job there will get only maximum 300 or 400 per day. और जो उसी सेम ही कार्य मतलब यानी उसी समान कार्य में जो औरत है वहाँ जो मजदूरी करती है उसे सिर्फ 200 या 300 जो राशि है मिलती है। Why this inequality is being practiced in our country when our country is a free country? यहाँ पर ये भिन्नताएं क्यों हो रही है? Even if our country is free, these practices are still going on. जबकि हमारा देश है वह आज़ाद हो गया है, फिर भी ये कुछ ऐसी जो प्रयास हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? In the whole world, there are many countries which are safe for women, but many countries are there that are not safe for women. जो हमारा पूरा विश्व है इसके अंदर बहुत देश है जहाँ पर जो औरतें हैं वो उनके लिए जो बहुत देश है जो सुरक्षित है और जो बहुत ऐसे देश हैं जो उनके लिए असुरक्षित है। So, can you name some safe countries for women? तो आप कुछ सुरक्षित देशों का नाम बता सकते हो For women. औरतों के लिए? So, you can add Croatia, आप क्रोएशिया को ज्वाइन यानी शामिल कर सकते हो, Canada, कनाडा को शामिल कर सकते हो, Finland, फिनलैंड को शामिल कर सकते हो etc. और आदि। In these countries, with the criminal cases for women are very low. इन जगह पर जो औरतों पे जो भी जुर्म के अपराध होते हैं वो बहुत कम है। The women feel safe when she is in these countries. जब औरतें इन देशों में रहती हैं तो वह सुरक्षित महसूस करती है। And can you name some unsafe countries for women? और आप कुछ असुरक्षित देशों के नाम बता सकते हो औरतों के लिए? Let me give you a hint. Our India is also an unsafe country. जो हमारा भारत है वह भी एक असुरक्षित देश है। And do
you agree that India is unsafe country for women? क्या आप सहमत होगी जो भारत है वह असहमत है इस No. Sir, India is not unsafe country for women. It is wrong. sir, in our Google or in our No, constitution, no. It is wrong. You are giving us a Okay, you can get it. You can go. okay, Iran is unsafe country for men. Iran Sorry, है women. Saudi Arabia, these are unsafe countries. जो ईरान है वह भी असुरक्षित देश है औरतों के लिए। Saudi Arabia, सऊदी अरेबिया भी एक असुरक्षित देश है। Pakistan, पाकिस्तान भी असुरक्षित है। etc. These are some unsafe countries for women. ये कुछ देश है जो औरतों के लिए असुरक्षित है। But if we talk about our India, अगर हम हमारे भारत के लिए बात करते हैं, can you name some safe states for our women? क्या आप कुछ सुरक्षित राज्यों के नाम बता सकते हो हमारे भारत के? Sir, can you name? UP, Sir, UP is very unsafe country for women. Sorry, state for women. प्रेजेंट टाइम में से no, no, no. पहले UP का is unsafe. not a unsafe country for the women. अब की स्थिति ये है कि कोई लेडी जो है अपने हस्बैंड से लड़के फोन कर देती है ना, और 5 मिनट में या आधे घंटे में पुलिस आ जाती है, उसको उठा वो के तो राइट्स एंड सप्लेजेस है, वो सही बोल रहे हैं। इसका जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो बता रही है था ये है। हाँ, ये कह रहे हैं आपको कि आप पूरा आपसे पूछा जा रहा है और कुछ नहीं, आपसे पूछा जा रहा है हाँ था कि नहीं था। ये कोई झूठ तो बोलेगी नहीं, लिखा हुई बात ही बता रही है, पढ़ा हुई बात बता रही है। कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी बोल रहे हैं, उसमें नहीं जा नहीं रहा है। नहीं, मैं भी वो नहीं बोल रहा। आप अगर सेटिस्फाई हो तो यस, नहीं है तो नो, सिंपल। Sir, I am talking about the past situation of women now. जो औरतों की जो पुरानी काल की जो स्थिति थी वह बता रहे हैं। So, इसलिए हमारे we can add safe countries, Tamil Nadu, हम इसमें कुछ सुरक्षित देशों के नाम जो शामिल कर सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, Kerala, केरला and many other states of our India. और बाकी अन्य भी राज्य। But can you name some unsafe states for India, ma'am? पहले का भी बता सकते हो या प्रेजेंट का भी बता सकते हो, कैसे भी बता, अगर आपको लगता हो या आपने सुना हो। अभी तो काम करेंगे। So, unsafe. तो असुरक्षित Delhi, दिल्ली। and each year more than 11 lakh cases for women, criminal cases are going on Delhi. Then we can't say that this country This one is present or it is past? Sir, This it is Delhi about 2020 census. 2000 20 census. 2020 century. It means 3 years back. Yeah. Statement. Okay. Now carry on. So, like this, Andhra Pradesh, आंध्र प्रदेश, बस 10 मिनट और and etc. Many That's good. countries are, many states are unsafe for women. और दूसरे राज्य भी होते हैं जो असुरक्षित हैं। So, I am teaching at the conclusion. So, my aim of telling is that men not created women. God created men and women both. So, men can't define their limits. Men can't take the decision of a woman's life. तो जो हमारा परिणाम यह है कि जो 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 औरतों को जो मर्द ने नहीं बनाया, औरतों को भगवान ने बनाया है। मर्द औरतों की जो जो हद होती है वह नहीं बता सकते, उनकी जो लिमिट्स होती है उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। So, we studied about rights and suffrages and women. तो हमने पढ़ाई की अधिकार और मताधिकार औरतों के बारे में। So, that's all. If you are not satisfied with some of my quotes, then I'm sorry for that. And if you have any kind of questions, then you can ask. अगर आप कोई विषय से सहमत नहीं हो तो आपसे मैं माफी मांगता हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, आपने जो प्रेजेंटेशन दी, पहले नेक्स्ट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। 10 के स्टैंडर्ड में ऐसी प्रेजेंटेशन देना बहुत बड़ी बात है। मैं तो देखता हूँ BSc MSc वाले बच्चे वो भी इतने अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा MSc लेवल पे। नहीं, आप लोगों को इसलिए बुलाया ताकि अपनी गलती बताओ। गलती बताएंगे, पहले इनकी तारीफ तो करें। हाँ नहीं, तो करो पहले तारीफ करेंगे, करो आप करो। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ये क्या पे